तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल अकेडमी में। और हम कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये है आज की क्लास है सेक्शन नंबर 8 पर, एंड इट वाज सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कराया है उतना करके याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। केवल नंबर को आपको एडजस्ट करना है सेक्शन 8 को। अब जहाँ पर सेक्शन 10 आएगा इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसको आप लोगों ने सेक्शन 8 समझना है, बाकी सब कुछ सेम है। So let's start the class. Today we are going to start the section 10 of the Indian Evidence Act. Which section? Section 10 of the Indian Evidence Act, and this section is very important for your prelims and also very important for your mains examination. And therefore thorough concept clarity of this section is very needful for you. Otherwise you may somewhere you get confused whether in prelims exam or in your mains exam. It will be very difficult for you. And to have the better understanding of this, you will have to understand the section 120A of the IPC as well. So 120A IPC as well, which defines criminal conspiracy. एक बात. Secondly, along with the section 10, आपको section 5 of the Indian evidence की भी जानकारी होनी चाहिए. तो पहले हम लोग चले जाते हैं, एक बार एक क्विक वो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली 120A क्या कहता है। 120A IPC, सेक्शन 120A IPC। आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्लास ऑफ IPC हेयर, जस्ट एक रेफरेंस है। सेक्शन 120A डिफाइंस व्हाट? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो सेक्शन 120A IPC डिफाइंस व्हाट? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो प्लीज सी द सेक्शन। व्हाट इज दिस? When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated as a criminal conspiracy. What is the requirement? There must be an agreement between two or more persons. Fine. Two and more persons agree to do what? To do or cause to be done. To do or cause to be done का मतलब है, to do का मतलब they would like to do it by themselves. To do. और कॉज टू बी डन मीन्स किसी अन्य से करवाएंगे, करने के लिए या करवाने के लिए। टू और मोर पर्सन्स एग्री टू डू दैट। ठीक है। व्हाट? समथिंग विच इज एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स। तो या तो किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए या फिर किसी ऐसे एक्ट के लिए जो कि अपने आप में इलीगल ना हो लेकिन इलीगल मीन्स के लिए। जैसे यू वॉन्ट टू गेट द जॉब ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, तो गेटिंग द जॉब of a judicial officer is not an illegal act, but if you want to grab it through unlawful means, some setting, some bribing like this, then it will be called the illegal means. अगर आप और मैं ये एक एग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है मैं आपको नौकरी दिला दूंगा जुडिशरी की और मेरी सब कमीशन में और यहाँ पर वहाँ पर पहचान है, तो it means what? I and you are agreeing to do an act which is not illegal but by illegal means. So then that agreement will be designated as criminal conspiracy. समझ में आ गई बात? तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई। एंड सी, जो कॉन्स्पिरेसी कॉन्सेप्ट है वो सिविल में भी आता है। इन केस ऑफ क्रिमिनल लॉ वी सेड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एंड व्हेन वी डील द सेम सब्जेक्ट इन टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, इट इज सेड व्हाट? कॉन्स्पिरेसी। तो कॉन्स्पिरेसी इज ए सिविल रॉन्ग एंड एज वेल एज इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस एज वेल। Now Indian Evidence Act में, एविडेंस लॉ में we try to find out how these facts of conspiracy, how we can prove a conspiracy. किसी conspiracy को आप, षड्यंत्र को आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, and for that purpose you will have to go to section 10 of the Indian Evidence Act. So this is the correlation between section 120A of the IPC and the section 10 of Indian Evidence Act. Got it? अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड। ठीक है। नाउ प्लीज सी दिस। इन इंडियन एविडेंस एक्ट व्हाट वी आर डूइंग? दिस इज सेक्शन 5। प्लीज सी दिस सेक्शन 5। सेक्शन 5 ऑफ द एविडेंस एक्ट सेज व्हाट? एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू and other facts as are hereinafter declared to be relevant. It means what? According to section 5, we can give evidence of two kinds of facts. First is what? Facts in issue, and second is what? Relevant facts. And these relevant facts will be determined by sections 6 to
55 and section 10 is one of them. तो in this section 10 हम लोग ये देखने वाले हैं कि which facts are relevant. Which facts are relevant? The moment one fact is declared to be relevant, section 5 enables us to give its evidence. जैसे कोई फैक्ट रेलिवेंट डिक्लेयर हो जाएगा, सेक्शन 5 की हेल्प से हम उसका एविडेंस दे सकते हैं और उसका जो कंक्लूजन निकल के कहाँ आएगा, सेक्शन 165 क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी रेलिवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। तो ये कनेक्शन हो गया सेक्शन 5, 165 एंड जितने भी सेक्शन हैं 6 to लेकर के 55। 6 to 55 के में जितने भी सेक्शंस आएंगे, दे विल लेट अस नो विच फैक्ट्स आर रेलिवेंट, कौन कौन से फैक्ट रेलिवेंट हैं। द मोमेंट ए फैक्ट इज रेलिवेंट बिकॉज ऑफ सेक्शन 5 वी कैन गिव इट्स एविडेंस। सही है, तो रेलिवेंसी एंड देन फिर वी कैन गिव इट्स एविडेंस एंड इफ इट इज ड्यूली प्रूव्ड, if it is duly proved, judgment, ultimately judgment can be based upon that duly proved relevant facts। ये बात समझ में नहीं है आपको कि हमने क्या देखना है यहाँ पर, रेलिवेंट कोई फैक्ट रेलिवेंट है या नहीं है। अगर एक फैक्ट रेलिवेंट डिक्लेयर हो गया, चाहे वो सेक्शन 9 में हो, 8 में हो, सेक्शन 10 में हो, किसी भी सेक्शन में हो, 6 से लेकर 55 में कोई फैक्ट अगर रेलिवेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उस रेलिवेंट फैक्ट का हम लोग फिर एविडेंस दे सकते हैं बिकॉज ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 ये कहता है कि वी कैन गिव एविडेंस ऑफ 2 काइंड्स ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स इन इशू यानी कि डिस्प्यूटेड फैक्ट्स एंड अदर कैटेगरीज व्हाट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। अब हमने एविडेंस दे दिया, रेलिवेंसी से हमें चल गया पता कि भाई हाँ इस फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है। उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, इफ दैट रेलिवेंट फैक्ट इज ड्यूली प्रूव्ड देन दैट कैन बिकम द बेसिस ऑफ द जजमेंट एज पर द सेक्शन 165। तो ये मैट्रिक्स है सेक्शन 5 की, 165 की एंड अदर सेक्शंस। तो राइट नाउ इन दिस क्लास ऑफ रिलेटिंग टू सेक्शन 10 वी आर गोइंग टू स्टडी विच फैक्ट्स आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 10। गॉट इट? तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ सेक्शन 10। बेसिकली सेक्शन 10 इज डीलिंग विद द एविडेंसेस रिगार्डिंग द कॉन्स्पिरेसी। अब कॉन्स्पिरेसी के बारे में समझिए पहले आप, देखिए व्हाट इज द special about the conspiracy. See, conspiracy, जो offense of conspiracy है, that is always hedged in darkness, secrecy. Secrecy में हम काम करते हैं। Mere agreement is sufficient. अगर if I and you are agreeing to commit murder of someone, ये और मैं एग्री करते हैं कि हमें किसी का मर्डर करना है, खून करना है, तो वो हम ऐसे नहीं करेंगे कहीं जाकर के ओपन प्लेस में जोर जोर से बात करेंगे, हाँ भाई हाँ तैयार हो खून करने के लिए, ऐसा तो होगा नहीं। ये अलग जाके गुपचुप तरीके से होगा, होगा नहीं होगा। तो ये अपने आप में इसके लिए डिफिकल्ट है एग्जाम जो सीक्रेसी का, जो क्योंकि अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपने आप में अपराध है। देखिए मैंने और आपने ये एग्रीमेंट किया कि हमें किसी का मर्डर करना है, अब भले ही मर्डर हो या ना हो, this agreement is itself an offense। Are you getting this point? कि अपने आप में mere agreement is an offense and then it becomes very very difficult to prove such kind of offense, जो प्रैक्टिकली भी जमीन पर आया नहीं है, अभी केवल वो एग्रीमेंट तक ही सीमित था वो। तो therefore some special steps will have to be taken to prove the offense of conspiracy, कि जिस offense के जो एविडेंसेस हैं वो इजीली अवेलेबल ना हो, उसके लिए फिर यू विल हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल, यू विल हैव टू ट्विस्ट द रूल्स कि किस तरीके से कौन कौन कॉन्स्पिरेसी में है, उनको कैसे कैसे अटैच किया जाएगा, उसके लिए आपको स्पेशल रूल्स ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। एंड सेक्शन 10 इज एन एफर्ट इन दैट ग्राउंड। मान लीजिए आप इस कॉन्स्पिरेसी में, सपोज कीजिए ये कॉन्स्पिरेसी है कि मिस्टर विक्रांत का मर्डर करना है एंड वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। लेकिन जो एविडेंसेस आए हैं, डायरेक्ट एविडेंस आए मेरे और आपके आगे, बस कुछ लोगों के नहीं आए हैं, तो हाउ कैन दोज पर्संस आल्सो बी कनेक्टेड
क्योंकि कॉन्स्पिरेसी एक छोटे से ऑफेंस के लिए हो सकती है, इट मे बी लार्जर कॉन्स्पिरेसी, जैसे देयर वाज ए कॉन्स्पिरेसी हैज्ड बाय द पाकिस्तानी नेशनल्स एट द मुंबई प्लॉट, मुंबई जो कसाब की जो घटना हुई, दैट वाज नॉट इंस्टेंटेनियस, दैट वाज ए प्री प्लान्ड, एक कॉन्स्पिरेसी का नतीजा थी वो। The assassination of the Rajiv Gandhi was a part of criminal conspiracy, है कि नहीं? Assassination of Indira Gandhi was a part of the criminal conspiracy. तो उस criminal conspiracy में कितने कितने लोग शामिल हो सकते हैं, nobody knows, क्योंकि these all plannings and things are done in secrecy. तो उन secrets को सामने लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्पेशल रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ एविडेंस एक्ट में इस तरह की बातें लानी पड़ेंगी, सो दैट कि हम पूरे नेट है उसको अनकवर कर पाए, उनको कनेक्ट कर पाए, उनको सह दिल पा पाए। तो सेक्शन 10 इज एन एफर्ट इन दैट डायरेक्शन। आई होप यू गॉट द व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू। प्लीज रेज हैंड अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो। नाउ लेट्स गो टू द बेरेक लैंग्वेज ऑफ दिस। क्या कहते हैं? Where there is a reasonable ground to believe that, and this is the first line, very important for you itself, very first line, please बेरेक को पढ़ना सीख जाइए। There is a reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong, and these are again two keywords, important keywords. What? To commit an offense. Please see this side and highlight these keywords. To commit an offense as well as actionable wrong. So these two words, please see this slide now. What is the reasonable ground to believe? There must be a reasonable ground to believe what? Two or more persons have conspired to commit an offense or an actionable wrong. So see, यहां पर offense की बात आ गई और यहां पर क्या बात आ गई? actionable wrong की। It means what? Section 10 deals with both kind of conspiracies. That is what? Criminal conspiracy and a simple conspiracy, that is civil wrong. And this is the question of your prelims as well. कि Section 10 is applicable only for the criminal offense of conspiracy or for the civil wrong of conspiracy or both. क्योंकि यहां पे शब्द क्या लिखे हैं? Offense. It means क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए हो गया, किसी भी ऑफेंस के लिए हो गया। सेकंड व्हाट? एक्शनेबल रोंग, किसी भी एक्शनेबल रोंग के लिए कॉन्स्पायर करना। हम लोग षड्यंत्र करते हैं कि हमने सामने वाले का जो बिजनेस है उसको बंद करवाना है, उसको हम लोगों ने डैमेजेस पहुंचाने हैं, ठीक है? तो दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन, अंडर टॉट, लॉ ऑफ टॉट। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स कि whether section 10 is applicable only for the criminal law or for the civil law as well. So section 10 is applicable for both civil law as well as criminal law. I hope this is clear to you now. लेकिन जो ग्राउंड है इसकी, इन ये कीवर्ड है, ध्यान रखना, देयर मस्ट बी रीजनल ग्राउंड टू बिलीव इट। नाउ प्लीज, इफ इट हैपन्स, क्या? नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीथिंग सेड, done or written, anything said, done or written by any of such persons. तो इन तीन बातों को आप लोग अलग अलग हाईलाइट करेंगे। जो कुछ भी सेट कहा गया, किया गया या लिखा गया, There are three keywords and very important for your exams. Anything said, done or written. किसके द्वारा? By any one of such persons. उनमें से किसी एक के द्वारा भी. By any one of such persons. समझ रहे हैं बात? उनमें से किसी एक के द्वारा भी कुछ कहा गया हो या किया गया हो या लिखा गया हो. किस बारे में? In reference to their common intention. This is said, done or written must be in reference to their common intention of what? Common intention of criminal conspiracy. सही है? कब? After the time when such intention was first entertained by any of them. That intention of what? Criminal conspiracy की जो conspiracy जो intention है, जब पहली बार दिमाग में आई, उसके बाद में जो कुछ कहा गया, किया गया या लिखा गया किसी एक के द्वारा भी, इज ए रेलिवेंट फैक्ट.
अब इसको समझिए है क्या, इस स्लाइड से समझने की कोशिश कीजिए आप। दैट वाज द डायरेक्ट लैंग्वेज। अब इसको समझिए आप। रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन, सपोज कीजिए ए बी एंड सी, these are two or more persons who have conspired for this. Now whatever has been said, done or written by any of them, A ने जो कहा, नोट B और C ने, इनमें से किसी एक ने भी कुछ said, done और written की कैटेगरी में अगर आता है तो that is a relevant fact। कैसा? As against each of the persons believed to so conspiring। एक ने कहा this is done, said, done or written by A, but whatever has been said, whatever has been done or whatever has been written is relevant against the others as well, B and C। This is the special thing in this। लिख कौन रहा है? मैं लिख रहा हूं कि आज मैंने और मिस्टर रमेश जी ने, आज ये हम दोनों ने बैठकर तय कर लिया है कि हम मैडम एक्स को जिंदा रहने नहीं देंगे। आमीन। ऐसे करके मैंने अपनी डायरी में छोड़ दिया। यू आर नॉट नोइंग अबाउट दिस कि मैंने कुछ लिखा है। अदर कॉन्स्पिरेटर इज अनअवेयर। अब वो काम हो जाता है, कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दे दिया गया है और मेरे कब्जे से वो डायरी मिल जाती है। तो वॉट एवर आई हैव रिटन दैट विल बी रेलिवेंट अगेंस्ट यू एज वेल। दिस इज द स्पेशल थिंग इन दिस सेक्शन 10। दैट मे बी रेलिवेंट अगेंस्ट मी तो है ही है, बट अगेंस्ट यू एज वेल। तो दिस इज वॉट, दिस इज द लैंग्वेज। प्लीज सी दिस। relevant as against each of the persons believed to so conspiring। जिनके बारे में ये विश्वास है कि जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, षड्यंत्र रचा है, उन सब के प्रत्येक के विरुद्ध वो वैसा said, done और written relevant होगा। प्लीज रेज हैंड अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो। एंड सेकेंडली, as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy, as for the purpose, this is important, for proving the existence of, this is important for you, for proving the existence of the conspiracy, whatever has been said, whatever has been done or written is relevant not only for this first thing against the others, but also टू प्रूव, फॉर प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, कि हाँ वाकई में कॉन्स्पिरेसी हुई थी या नहीं हुई थी, ये भी प्रूव किया जा सकता है बिकॉज ऑफ माई लाइन्स कि यस आई एंड मिस्टर रमेश हैज एग्रीड टू किल मिस्टर एक्स। तो दिस स्टेटमेंट विल प्रूव टू थिंग्स नाउ। फर्स्ट, दैट मिस्टर रमेश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, फर्स्ट, एंड सेकेंडली देयर वॉज ए कॉन्स्पिरेसी फॉर दिस, टू प्रूव द एलिमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी अपना आप एक ऑफेंस है, ठीक है, एंड ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज ए पार्टी टू इट। तो नाउ दीज आर द थ्री पर्पजेस। इसको आप ऐसे देख सकते हैं। प्लीज सी दिस, दिस इज द स्लाइड फॉर यू। एनीथिंग सेड, डन और रिटन इज रेलिवेंट बाय एनी ऑफ द पर्सन मीन्स ए। तो वॉट एवर हैज बीन सेड, वॉट एवर हैज बीन डन और रिटन बाय ए इज रेलिवेंट फॉर थ्री पर्पजेस नाउ अगेंस्ट ईच ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। वन, secondly, to prove the existence of the conspiracy, two, and third, any such person was a party to it. So these are the three purposes for which anything said, done or written can be used for this. Now see the questions. Which of the following facts is relevant under section 10 of the Evidence Act? This is Rajasthan APP exam 2005. This question has come. Those facts which are introductory in nature, no, because this is what, section 9. Those facts which help to certain identification of the article or a person, section 9. Those facts which depict relation between parties, section 9. This is those facts from which inference of conspiracy can be traced, this is section 10. So this kind of questions you can see in your prelims exam. This is the one of the example. Secondly, what kind of exam?
things said or done by a conspirator in reference to common design is relevant fact under which section? Section 10. So what kind of questions are there? Either there are the questions relating to a direct language or the understanding of question, or simply on the number of the section. किस नंबर से क्वेश्चन आ रहा है? You can see the illustration now. What is this? This is the illustration given in your direct. Reasonable ground exists for believing that A has joined in a conspiracy. A ने की conspiracy को join किया, इस बात के grounds हैं believe करने के. What is the conspiracy? Conspiracy is to wage war against the government of India. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए षड्यंत्र का पार्ट बना है A. This is the reasonable ground to believe for you. Got it? What are the next facts? The facts that B procured arms in Europe for the purpose of conspiracy. So it has been done by A. It is something done by B. What has been done by B? He procured arms. One thing. Something has been done by one of the conspirators. It is B. What B did? B procured arms. C collected money in Calcutta for a like object. This is something done by C. He collected money in Calcutta. And third is the D persuaded persons to join the conspiracy in Bombay. It is something said by. So please see the case of R versus Blake, and this is the next question for your prelims exam. Out of following cases, which case law is related to the section 10? निम्नलिखित केसेस में से कौन सा केस सेक्शन 10 से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आएगा. सिर्फ ये जिम्मेदारी मेरी है कि आपको पहले बता दूं मैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू टू कीप इट इन माइंड, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को. तो आर वर्सेस ब्लेक इंग्लिश केस है. क्या है? कौन व्यक्ति है? ब्लेक एंड टाई. दो व्यक्ति हो गए. दीज आर वर्किंग एट द कस्टम्स हाउस. They were charged with conspiracy to dodge the customs by passing goods without paying full duty. This is a charge over them that what? They conspired to dodge the customs. ताकि कस्टम ड्यूटी को बचाया जा सके. Both of them conspired with each other to dodge the customs officer. हो गई क्लास आपकी. तो मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार ये याद दिलाने की जरूरत है कि आप लोगों ने नोट्स बनाए या नहीं बनाए. आपने vidhijudicial.com वेबसाइट पर जाकर के नोट्स वहाँ पर देखे या नहीं देखे, या आपने हमारे ऐप को डाउनलोड किया या नहीं किया. सिर्फ मुझे आपको अब ये कहना है कि अभी हम आ गए हैं, अभी आपने पढ़ लिया है सेक्शन 8 ऑफ द BSA तक पढ़ लिया है. तो आप अपने आप से पूछिए क्या अभी तक सेक्शन 7 तक आपको याद कर लिया आपने, नहीं कर लिया. देखिए अगर आपने याद नहीं किया है तो फिर आपकी गलती होगी. मुझे मत कहना, ये मत कहना कि विधि जुडिशियल एकेडमी ने आपके साथ कुछ कम मेहनत की है. हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी याद करने की और रिवाइज करने की, इतना ध्यान रखिए. ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वो. लेकिन तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा इन वीडियोस को, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर लीजिए. इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी टीम का बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है इसमें. थैंक यू वेरी मच.